Namaskar, good morning everyone, especially all the subscriber who have subscribed for this channel. Uh, we are meeting after a long time because of some, I was preoccupied earlier. But the response of the first serial which I got was very enthusiastic, and the students, especially of the engineering colleges as well, and the the other people who are civil engineers, practicing civil engineers, they have been uh, watching that episode, and they all have come out with some suggestions. I have got some suggestions from all of my subscriber. Uh, the first suggestion is which I take as a majoritarian suggestion. That is, people have requested me to take up the classes in Hindi rather. Uh, I understand that because in the engineering college when we study in English medium, and all books are in English. Hindi books are not there, especially in almost all the colleges in India, and the medium of instruction what they uh, teach in the class, what the professor teach in the class in across India and across the world, and in the all engineering colleges at all levels, whether you are undergraduate students or you are postgraduate students or you're doing PhD, but the thing is, medium is English only. Medium everywhere is English, but there is a great difficulty comes when you are uh, placed somewhere, and then you are into the practices area, where you are working somewhere in some company, in some construction company, in some real estate company, in some structural consultant company, in some water technologies companies, in some irrigation design and drawing companies, in some irrigation structures company, in some infrastructure company. Infrastructure has itself is a too huge to measure it, because some of the engineering class are we know that this is under this periphery, but infrastructure project is such a project which has infinity kind of constructions, which gradually I will come with the different videos. I take up this, coming back to the suggestions given by the uh, people and the subscriber. Uh, they wanted me to prepare this program in Hindi. Okay, I'll prepare this program rather than Hindi. People were more or less requested me to go in the uh, Hindi and English both medium, because that is called in India, it is called English medium of instruction, or English medium of teaching of the students, or talking with the other subscriber who are a part of this program, and they will stay in this program for first 101 episode, 101 episode. So let's be practical, and I am coming up. I am coming up in this episode only with English what they have been asking me.
Yes, but one thing I will tell you that the vocabulary and the sciences which has been defined in civil engineering arena, that will be in English only. Otherwise, my medium of talking to you will be in Hindi. So let us start in English only. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। कुछ सजेशंस मुझे और मिले हैं इसके अलावा, जो एक इंग्लिश इंस्ट्रक्शन का था, एक हिंदी मीडियम का था। इसके अलावा कुछ और मुझे जो एक रिक्वेस्ट मिला बहुत लोगों का, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियर नहीं हैं, बट लेकिन सिविल इंजीनियरिंग को ऐसे ही हम लोग रासायनिक अभियंत्रण कहते हैं, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग ऑफ ए कॉमन पीपल है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो होते हैं उसमें एक डिफाइंड सिलेबस होता है, एक डिफाइंड हमारा पहुंच होता है, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है। रासायनिक तौर पे जो अभियंत्रण में जुड़े हुए हैं वो सेना के, आर्मी के काम को छोड़कर जो भी इंजीनियरिंग करते हैं वो रासायनिक अभियंत्रण कहलाते हैं। तो इसलिए आप ये छोड़ नहीं सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर चीज़, जो मैं आऊँगा धीरे धीरे आपके साथ, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारा एरिया नहीं है समझने का। ये थोड़ा मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब फर्स्ट ईयर में वो जाते हैं तो जो मैंने देखा है आजकल, पिछले 10 साल का ट्रेंड जो देखा है, वो बहुत से लोग एडमिशन तो ले देते हैं सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो लोग मतलब मन से सिविल इंजीनियरिंग को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं फर्स्ट ईयर में। उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं फर्स्ट ईयर में जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देता रहूँगा तो शायद अच्छे नंबरों से पास करूँगा तो मेरा ब्रांचेस चेंज हो जाएगा। आप कोई भी ब्रांच में जब मैं उस चीज़ पे नहीं बोलूँगा कुछ। हर लोगों की अपनी एक चॉइस है इंजीनियरिंग पढ़ने का। लेकिन हाँ, किसी भी ब्रांच में आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, मेटलर्जिकल हो, कोल हो, माइनिंग हो, अब तो सेरेमिक भी आ गया। पहले सिविल में हम लोग नहीं पढ़ते थे ये सब, सेरेमिक वगैरह हमारा पार्ट होता था। सेरेमिक आ गया, सिविल को अलग कर दिया, स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। तो आप किसी भी एरिना में, किसी भी डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करते हो, अगर ये 4 साल के बाद के चीज़ों को सोच के, तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छे इंजीनियर बनने का। कैंपस प्लेसमेंट फोकस्ड फर्स्ट ईयर से आप बच रही, आप इंजीनियरिंग को पढ़िए। ये मेरा एडवाइस है। 20 साल के सर्विस के बाद, 20 साल के नौकरी के बाद मैं ये एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि आप पढ़िए। आप फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप अप्लाइड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिजिक्स लैब होता है या केमिस्ट्री लैब होता है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा। बहुत कम लोग इस तरह के सजेशंस आपको देते हुए मिलेंगे कि आप जो भी ब्रांच में रहेंगे, आप जो भी ब्रांच अलॉट हुआ है, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है इंजीनियरिंग में, सभी लोगों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। आपको
एक एक सब्जेक्ट में अपनी इंजीनियरिंग, अपना एरिया ढूंढना है। चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो तो मैं सिविल वालों को ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं, आप पावर सर्किट पढ़ते हैं, आप पावर एनालॉग पढ़ते हैं। पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर है, लेकिन पावर की बात मैं कह रहा हूँ उस पावर की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जो वोल्टेज है, जो एम्पियर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में भी आगे जाते हैं तो हालांकि अब बहुत डेवलप हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन जब हम लोग कर रहे थे इंजीनियरिंग 93-97 बैच में मैंने किया था, तो हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो एक अलग मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट एमलगमेटेड था, एसिमिलेटेड था, और हम लोग सब साथ पढ़ते थे। मतलब हमारे लिए सर्किट डायग्राम बनाना या फिर पावर कंजम्पशन निकालना, या फिर अगर पाँच पाँच पंखा है और 10 जगह बल्ब के कनेक्शन दिए हुए हैं, 3 एसी लगना है घर में, तो ये पावर जो एक कैलकुलेशन होता था वो हम लोग करते थे। उसके हिसाब से हम लोग फ्लोर पैनल और आपके रूम पैनल और हर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स डिज़ाइन होता था, तो वो हम ही लोग करते थे। उस टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ये नहीं पता होता था कि मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी उनका स्कोप बनता जा रहा है, तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ करते थे आने के लिए। लेकिन अब बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। अब अगर सिविल 60% होता है तो 40% आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों को भी मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा मतलब आपके लिए एरिया है जहाँ अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं। तब ऐसा नहीं है कि एक माइंडसेट लेकर मत चलिएगा कि आप एनटीपीसी या पावर जनरेशन कंपनी में काम करेंगे या फिर सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ये सब फ्री, माइंड को फ्री रखिए, दिमाग को फ्री रखिए, और जो भी पढ़िए उसमें अपने इंजीनियरिंग को ढूंढिए कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें कहाँ पे है, सिविल इंजीनियरिंग इसमें कहाँ पे है, तो वो चीज़ आपको ढूंढना पड़ेगा। इवन अप्लाइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें सिविल पार्ट कहाँ निकलेगा मेरा, इलेक्ट्रिकल पार्ट कहाँ निकलेगा। और अगर आप के अंदर इस तरह का एक चीज़ एक बार डेवलप होता है, अगर होता है तो आप ये जान लीजिए कि आप सक्सेसफुल इंजीनियर बनने वाले हैं। एक ऐसे इंजीनियर बनने वाले हैं जो आप हमेशा आपका एक दिमाग रिसर्च करता रहेगा कि ये कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं। और आजकल इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव साइंसेस का ज़माना है जहाँ पे आप कुछ अलग अगर होते हैं दूसरों से तो मतलब आपको खुद ही लगेगा कि मैं वर्थ हूँ इस जगह के लिए। नौकरी सबको मिलता है, नौकरी सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जो जहाँ चाहता है वहाँ मिलता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जो कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक वगैरह करने चले जाते हैं, कुछ लोग कमीशंस वगैरह का तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। तो मैं उनके लिए भी बोलूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं तो भी आप अपने विषय से, अपने सब्जेक्ट से दूर रहने की कोशिश मत कीजिए। सब्जेक्ट को एकदम पकड़ कर रखिए, क्योंकि ये आपको हर जगह एक गेट पास की तरह दिलाएगा जाने के लिए। और कभी ये मत सोचिए कि मैंने ये इलेक्ट्रिकल दे दिया, इलेक्ट्रिकल में तो आजकल जॉब नहीं है और
मैं क्या करूँगा। बहुत एबेंडेंट स्कोप है। अगर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ बताऊँगा आगे आने वाले एपिसोड में, कहाँ पे किसका क्या स्कोप है, कहाँ आप बेहतर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा। तो सिलेक्शन आपका, अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका है। फाइनल ईयर में जब 7th सेमेस्टर में होते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट कॉलेज करवाती है, और बहुत से लोग प्लेस्ड हो जाते हैं उसमें। मोस्टली 90% से 100% लोगों का के बीच का एक रेशियो होता है जहाँ लोग सेलेक्ट होते हैं। बाकी कुछ लोग चूज़ करते हैं मास्टर्स, और कुछ लोग चूज़ करते हैं आगे पढ़ाई करना या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। तो वो एक सेगमेंट अलग होता है। लेकिन पढ़िए, अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को हर विषय में, हर सब्जेक्ट में ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, आप अपने प्रोफेसर से पूछिए। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बताएंगे। और वो भी चाहते रहते हैं कि मतलब स्टूडेंट आए निकल कर उससे और हमसे बात करें। और मतलब क्योंकि प्रोफेसर्स को आपको पढ़ाना है तो वो 1 घंटा या 3 घंटे का एक क्लास होता है अमूमन। तो वो क्लास लेकर चले जाते हैं, उनके पास सिलेबस होता है जो 2 घंटे में उनको करना है, तो वो पढ़ा कर जाते हैं। क्वेश्चंस और कोरिलेट करना आपको सब्जेक्ट, अपने ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग से उस सब्जेक्ट को, वो चीज़ आपको जनरेट करना पड़ेगा अपने अंदर। इंजीनियरिंग एक जनरेटिव साइंस है। इंजीनियरिंग में अगर आप कहीं कमज़ोर होते हैं किसी भी तरीके से, या ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि मुझे जो सब्जेक्ट है इसमें मैं अच्छा रिजल्ट ला रहा हूँ, अच्छा नंबर ला रहा हूँ, और कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में मैं कैंपस प्लेसमेंट भी होगा, तो उसके लिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप सोच के मत पढ़िए। आप पढ़िए अपने लिए, ये आपको काम देगा, ये सोसाइटी को काम देगा। ये एक सोशल सर्विस भी है। इंजीनियरिंग साइंस एक सोशल सर्विस भी है अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे तो। अपने लिए मत करिए। आप ढूंढिए अपने ब्रांच को, अपने पेरेंट ब्रांच को। आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं कि वो उस सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, मेरा सब्जेक्ट कहाँ खड़ा होता है, तो ये सब आपको पूछना पड़ेगा। ये अगर आपके अंदर इंडिजीनियस नहीं डेवलप होता है तो आपको ये बातें पूछनी पड़ेंगी प्रोफेसर से, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे अनुभव के साथ वो लोग पढ़ाते रहते हैं। हर तरह के स्टूडेंट को उन्होंने देखा होता है। तो आपको वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। और समय बर्बाद मत कीजिए। ये मेरा एक मंत्र है आपके लिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रिजल्ट अच्छा आता हो, रिजल्ट मीडियोकर आता हो, 60% का कटआउट अगर आपने रखा हो कि मैं हर सेमेस्टर में 60% लाऊंगा, सेशनल में हर एक सेशनल में 25 में से 20 नंबर लाता हूँ, तो वो मत रखिए। सेल्फलेस तरीके से पढ़िए और इन्वॉल्व होकर पढ़िए। और जितना पढ़ेंगे उतना अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में, और आपका समय भी वर्थ होगा। क्योंकि वो 4 साल जो होता है इंजीनियरिंग का, फिर ज़िंदगी में लौट कर कभी नहीं आता। आप फिर ये सोचेंगे कि काश वो 4 साल मैंने ये किया होता तो शायद मैं वो ये होता। तो वो मत करिए। आपको वो लेकर चलना है और ये बताना है लोगों को कि हम जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, हमने पढ़ाई अच्छा किया, हमने पढ़ाई को कोरिलेट किया। जितने चीज़ों को आप देखते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, कैंपस के बाहर या कैंपस के अंदर, आप जो भी इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं, रोड देखते हैं, लैंडस्केप ग्रीन एरिया देखते हैं, अच्छे हार्डस्केपिंग देखते हैं,
आप अलग अलग तरह का लाइटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो अपने अंदर से आप लाइए कि ये कैसे है, इसमें पावर कंजम्पशन क्या है, पावर जनरेशन क्या है, इसका डिज़ाइन कैसे बना, डिज़ाइन अप्रूव कैसे हुआ, किसने अप्रूव किया, और ये भी स्कोप है, कैसा स्कोप है, इसको किसने डिज़ाइन किया होगा, किसने कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो ये सब आपको लाना पड़ेगा, अपने अंदर इनोवेटिवनेस लाना पड़ेगा। शुरू का 3 महीना जो आपका इंजीनियरिंग का होता है वो एक फ्रेशर वाला पार्ट होता है, तो उसमें लड़के एक दूसरे को पहचानते रहते हैं, और धीरे धीरे आपकी पहचान लोगों से होती है। धीरे धीरे आपको अपने प्रोफेसर्स को जानने का मौका मिलता है। तो वो 3 महीना को छोड़कर बाकी वो जो 3 साल 9 महीना आपके पास होता है, वो आप एक सीरियस अप्रोच के साथ पढ़िए, क्योंकि वो साल लौट कर ज़िंदगी में आपकी कभी नहीं आएगा। वो 4 साल जो इंजीनियरिंग का होता है वो आप शायद कभी नहीं आता है ज़िंदगी में। और वहाँ पे आप जितना सीख जाते हैं वो वही आपकी पूंजी होती है पूरी ज़िंदगी। बाकी नौकरी में जब जाते हैं आप, किसी भी नौकरी में, तो बहुत सेलेक्टिव सब्जेक्ट पे आप काम करते हैं। तो जो 90% ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस है वो आप भूलने लगते हैं। ये एक ट्रेंड है, ये एक प्रैक्टिस है कि ह्यूमन नेचर भी है कि हम जिस पे काम करते हैं वो हमें याद रहता है, जो हम छोड़ चुके होते हैं 5 साल पहले, 7 साल पहले, उसे हम भूलने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और पढ़ाई किसी और के लिए ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए ज़रूरत है, आपके भविष्य के लिए ज़रूरत है। और आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो अलग होगा जब आप फाइनल ईयर में पास करके निकलेंगे, कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट होंगे, या कहीं और आपने अपने कैरियर को डिज़ाइन कर रखा है, तो एक आपको सेटिस्फेक्शन होगा। वो सेटिस्फेक्शन, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ये मेरा मंत्र है, टाइम बर्बाद मत कीजिए, समय की बर्बादी कभी मत कीजिए। आप इंजीनियरिंग दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, एक ही बार करेंगे। तो आपको टाइम का उतना इक्वली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जितना आप सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा एक सजेशन था इसके अलावा कि कुछ लोगों ने पूछा था कि हम लोग जब अपने ज़मीन पे घर बनाते हैं तो हम लोगों को बहुत चीज़ नहीं पता होता है, और जैसे आप 1200 स्क्वायर फीट में या 1400 स्क्वायर फीट में या 2000 स्क्वायर फीट में आपके पास लैंड है जहाँ आप अपना ओन घर बनाना चाहते हैं अपने खुद से। तो मैं सही ये बात सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सभी सब्सक्राइबर के लिए बोल रहा हूँ, और सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, और उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो सब्सक्राइबर अभी नहीं हैं, और उनको अगर कहीं पता चलता हो या वो घर बना रहे हों और वो परेशान हो कि घर कैसे बनाना है, क्या डिज़ाइन करेंगे हम। सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कैसे बनाएंगे। तो वो वहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग ठेकेदार लोग होते हैं उनके कांटेक्ट में जाते हैं, और उस एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि घर जब आप बनाते हैं तो लाइफ टाइम का जो आपका एक उसको क्या कहते हैं, लाइफ टाइम का आपका जमा पूंजी जो होता है वो लगता है उसमें एक घर बनाने में। तो मैं आपको एक खुशखबरी भी दे रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए। आप अगर घर बनाना चाहते हैं, और बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी, पूछा भी, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। आप ज़मीन का साइज़ मुझे बता देंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉर्नर बता देंगे,
तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिज़ाइन बना कर दूँगा, और पूरा नक्शा प्लान के साथ आपको बना कर दूँगा। और उम्मीद उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चरल पार्ट उसका हुआ या फिनिशिंग पार्ट हुआ घर का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बना कर दूँगा। ये मैंने सोचा था बहुत पहले कि इस तरह से बहुत लोग परेशान होते हैं जब उनको अपना घर बनाना होता है तो, और कहीं न कहीं मतलब ना चाहते हुए भी वो करना उनको पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते हैं, या बहुत लोगों का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता है, तो वो सोचते रह जाते हैं कि बनाना है बनाना है। तो इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर दूँगा। मैं आपको सुपरविज़न भी मैं आपको ऑनलाइन करता रहूँगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो मैं आपको सुपरविज़न भी करता रहूँगा आपके घर पे, बताता भी रहूँगा कि कैसे आगे स्टील कैसे बांधना है, कंक्रीट कैसे करना है, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट करना है, ये सब करूँगा। ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है और बोनंजा भी है, क्योंकि आप एक तौर पे आप किसी लोकल लोगों से ठगे नहीं जाएंगे, ये चीज़ है। तो आपको जब भी आप घर बनाना हो तो मैंने जो बता दिया डिस्क्रिप्शन पे, आप वो बता कर मुझे दे देंगे कितना लैंड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कॉर्नर क्या क्या है, रोड कहाँ पे है, वहाँ पे वो एक सादे कागज़ पे आप बनाकर, मतलब हाथ से ही बना कर दे सकते हैं। उसके बाद आगे का काम मैं कर दूंगा आपका पूरा। उसके बाद आपको बहुत बहुत टेंशन नहीं होगा। आप कुछ मजदूर रख कर, कुछ राजमिस्त्री, कुछ मैसन, स्किल्ड मैसन, कुछ कारपेंटर, कुछ बारबेंडर, कुछ सरिया वाले, कुछ शटरिंग वाले को रख के आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं टाइम टू टाइम बीच बीच में गाइड करता रहूँगा आपको। ये चीज़ है। ये दो चीज़ मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊं। और तीसरा एक चीज़ है, ये प्रोग्राम मैं पहले ख़त्म करना चाहता था इनफैक्ट, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिला हूं तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आप इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग लैब में जाते होंगे। इंजीनियरिंग लैब में सिविल इंजीनियरिंग लैब करते होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते होंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ते होंगे। सिविल इंजीनियरिंग लैब पढ़ते होंगे, सैनिटरी लैब पढ़ते होंगे, जहाँ पे आप बीओडी और सीओडी और सैनिटेशन और ये सब निकालते हैं, और पीएच वैल्यू वाटर का निकालते हैं, तो ये सब करते होंगे। उसके बाद आप हाईवे, रोड एंड हाईवे का एक अलग लैब होता है जिसमें आप फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, बिटुमेन का निकालते हैं, एग्रीगेट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। उसके बाद सैंड का, सिल्ट का, मिट्टी का, इनका डेंसिटी चेक करते हैं, क्योंकि उसी पर रोड वगैरह उसी पर डिज़ाइन होता है। तो मैं आपको, ये एक पार्ट है जो कि इंजीनियरिंग क्यूरिकुलम का पार्ट है, लेकिन लड़के जब पढ़ते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कहाँ पे है, कैसे है। लेकिन मैं आपको एक और आज एक खुशखबरी दूंगा कि सारे सारे जो एस्पिरेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन करते हुए लाइव दिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन होते हुए लाइव दिखाऊंगा, और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स जो आपने अभी सोचा नहीं होगा। बहुत चेंजेस आया, बहुत पिछले 10 साल, 12 साल में सिविल इंजीनियरिंग ने बहुत चेंजेस किया है, जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग से अब बहुत
नया इंफॉर्मेटिव साइंसेस पे बेस्ड हो गया है पूरा सिविल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको सब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, बनते हुए कैसे बनता है, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। आपका कंसेप्ट जो है वहाँ से क्लियर होगा। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सब स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे, कि जब लैब जाएं, आप कभी भी लैब जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग लैब करते हैं, शील्ड के बारे में जानते हैं, शील्ड कंटेंट के बारे में जानते हैं, अर्थ प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, जो और भी टेंसाइल टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी एक टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल का एक टेस्ट होता है। तो उसमें टेंसाइल टेस्ट किया आपने, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला उसका, तो ये सब लाइव आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन जब आप कॉलेज में होते हैं और करते रहते हैं तो ये मतलब एटीट्यूड थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको टीचर आपको समझ में नहीं आए, मैं हर उस लड़के के लिए बोल रहा हूँ, जो कुछ लड़के शर्म से ऐसे होते हैं जो नहीं पूछ पाते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो नहीं पूछते हैं, और वो फिर अपने को जो उनके बैचमेट होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये ऐसे क्या था, मुझे बताइए आप फिर से। तो आप वहाँ पे पूछिए, आप अपने अंदर शर्म कभी मत रखिए कि मैं पूछूंगा तो शायद प्रोफेसर क्या समझेंगे हमारे। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोफेसर और खुश होते हैं अगर आप अपने आप को, अपने इग्नोरेंस को बदलते हैं इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट में, तो वो टाइम का भी इज्जत होता है, उस प्रोफेसर का भी इज्जत होता है, और आप भी अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे होते हैं। इसलिए अपने अंदर से वो एक जो हेजिटेशन है, वो हेजिटेशन निकाल दीजिए। आप ये भूल जाइए कि आपके अगल बगल कोई खड़ा है। आप जब प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं या अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप ये मत रखिए अपने अंदर कि आपको क्या करना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, और ये सब मत रखिए। आपको जो भी करना है, आपको जो भी पूछना है, आपको नहीं कुछ समझ में आता है लैब में, आप बार बार पूछिए, बार बार पूछिए। और कंसेप्ट वहाँ पे 3 घंटे का अगर लैब है तो कंसेप्ट वहाँ से क्लियर करके जाइए, बाहर मत लेकर जाइए। क्योंकि अगर आप ये, आपके दिमाग में अगर ये बात बैठ जाए कि 15 नंबर और 30 नंबर मैं ले आऊँगा लैब में तो मैं पास कर जाऊँगा, तो ज़िंदगी के रेस में आप फेल कर जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आप वहाँ पे पूछिए, आप कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। BOD क्या होता है, COD क्या होता है। जब सैनिटेशन लैब में जाएंगे आप, तो आप ये देखेंगे BOD क्या होता है, COD क्या होता है, pH वैल्यू क्या होता है, पानी पीने वाला कौन सा होता है, नहीं पीने वाला कौन सा होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल किसे कहते हैं, एक्वीफर किसे कहते हैं, एक पर्च एक्वीफर क्या क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कैसा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसा होता है, बेसाल्ट कैसा होता है। तो ये सब आपको वहीं पे सीखना है। और टीचर से एक बार नहीं 10 बार पूछिए अगर आपको 10 बार समझ में नहीं आता है। आप शर्म अपने अंदर मत रखिए, आप एकदम फ्री हो के टीचर से बात कीजिए। प्रोफेसर वैसे स्टूडेंट को लाइक करते हैं जो अपने अंदर से शर्म को निकाल कर, उस हेजिटेशन को निकाल कर, इनफैक्ट मैं कहूँगा आपको, उस हेजिटेशन को निकाल कर आप जब टीचर से बात करते हैं तो आप एक बार नहीं 5 बार पूछिए। और ये भी दुविधा मत रखिए, ये भी इस तरह का दुविधा मत रखिएगा कि बहुत से लोग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, बहुत से लोग IITs में जाते हैं, बहुत से लोग जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं वो साउथ इंडिया में पढ़ने चले जाते हैं। तो वहाँ पे प्रोफेसर भी जो होते हैं वो हिंदी कम ही बोलते आपको मिलेंगे, नॉर्मली अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का रीजनल डायलेक्ट अलग होता है। तो वो अपने रीजनल डायलेक्ट में बात करते हैं, हिंदी से उनको बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता है, तो इंग्लिश या अपने रीजनल डायलेक्ट में बात करते हैं, लेकिन हिंदी जानते होते हैं। आप अगर उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे, और वो खुश होंगे आपसे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो हमारे क्लास को बहुत सीरियसली सुन रहे हैं और सीरियसली बात कर रहे हैं, सीरियसली समझने की कोशिश कर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार पूछिए, छोड़िए मत
आपका ये 4 साल लौट कर ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। आप इंजीनियर बनने वहाँ नहीं गए। एक बात और मैं बताता हूँ, आप वहाँ इंजीनियर बनने नहीं गए, आप एक स्टूडेंट बन कर के गए हैं वहाँ पे। और फाइनल ईयर के बाद जब आप पास करेंगे और रिटेन क्या करते हैं आप अपने अंदर, वो उसके बाद आप इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर आप फर्स्ट ईयर में नहीं बनते हैं, इंजीनियर आप सेकेंड ईयर में नहीं बनते हैं, इंजीनियर आप थर्ड ईयर में नहीं बनते हैं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। और जब फोर्थ ईयर में आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं और आप जब अपने पीछे का 4 साल देखते हैं कि हमने क्या इम्बाइव किया, क्या एसिमुलेट किया अपने अंदर सिविल इंजीनियरिंग को, तो वहाँ पे जाकर आपको ये एहसास होगा कि आपने इंजीनियरिंग वाकई की या आपने टाइम पास किया। क्योंकि टाइम पास करने वाले भी अच्छे नौकरी करते हैं और अच्छे से इंजीनियरिंग करके निकल जाते हैं। आप क्लैरिटी रखिएगा अपने में। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज ऑफ नॉलेज आप क्या एसिमुलेट करते हैं वो ज़रूरी है। ज्ञान बढ़ाइए, मेरा ये सजेशन है आपसे। ये सजेशन मैं दे रहा हूँ चूँकि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, जिस पोजीशन पे 20 साल करीब मैंने नौकरी किया है अभी तक, तो हेजिटेशन को निकाल कर फेंक दीजिए। हेजिटेशन लेकर अपने कॉलेज के अंदर मत जाइए, कभी मत जाइए। कुछ भी नहीं आया पूछिए, एक बार नहीं 10 बार, 20 बार, 50 बार पूछिए, नंबर नहीं आएगा, कोई नहीं समझ। आपको 4 साल के बाद उसमें से बहुत ऐसे लड़के होंगे जो आपको ज़िंदगी में शायद बहुत कम मिलेंगे या बात करेंगे, या आपने जो पूछा होगा 10 बार, 20 बार, 50 बार, वो सब भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता है। हेजिटेशन मत रखिए, शर्म मत रखिए, किसी तरह का शर्म मत रखिए। पूछिए टीचर से, आप वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, आपका प्राइमरी काम है, आप इंजीनियरिंग करने गए हैं तो आप पढ़ने गए हैं। पढ़ने गए हैं तो टीचर जो होंगे, आपके प्रोफेसर जो होंगे, वो बहुत खुश होते हैं ऐसे स्टूडेंट से जो पूछता है, जो एक बार नहीं 5 बार पूछता है, 10 बार पूछता है, वो बुरा नहीं मानते हैं। पूछिए। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, ये मैं उन लोगों के बिहाफ में ये बताने जा रहा हूँ कि जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इवन वो पोस्ट ग्रेजुएट और के भी स्टूडेंट्स हों, एमटेक करने वाले हों, मैं उनके लिए एक खुशखबरी और दे रहा हूँ आज। मैं आपके लिए एक कोर्स टेलर डिज़ाइन किया है। ये जो पूरा 101 एपिसोड का टेलर डिज़ाइन मैंने किया है, वो ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको मैं हर एरिया, सिविल इंजीनियरिंग के हर एरिया के एक्सपर्ट लोगों से आपकी बात मैं करवाऊंगा। और मुझे खुशी होगी कि अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। वैसे मैं आपके बिहाफ में उनसे क्वेश्चन करूंगा ताकि आपकी नोएबिलिटी बढ़े। ये बात हमेशा रखिएगा, नोएबिलिटी आपको बढ़ाना है। ये आपको नहीं करना, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पास करके नौकरी करने के लिए नहीं गए हैं, आप नोएबिलिटी बढ़ाने के लिए गए हैं, इग्नोरेंस को निकाल कर फेंकने के लिए गए हैं। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा बूम होगा, जो डिफरेंट एरिया, सिविल इंजीनियरिंग एरिया के जो एक्सपर्ट हैं आज के डेट में, जिन्होंने पढ़ाई भी बहुत की, नौकरी भी बहुत लंबा किया और बहुत सक्सेसफुल करियर में रहे हैं वो लोग, उनसे मैं आपकी लाइव बात कराऊंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन है आपके पास, उसमें ईमेल आईडी भी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा, उनसे रूबरू करवाऊँगा। आप बहुत चीज़ों में आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। जो आपके अंदर झिझक है, जो इग्नोरेंस है, वो सब ख़त्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं भी उस फेज से गुज़रा हूँ। मुझे याद है, मैं भी फर्स्ट ईयर में था, तो मैं जिस क्लास में था वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंसेस का क्लास था, और उसमें सभी साउथ इंडियन लोग पढ़ते थे। मैं था नॉर्थ का, ईस्टर्न पार्ट का था। तो शुरू में मुझे भी झिझक होती थी, थोड़ी शर्म महसूस होती थी कि मैं अगर पूछूंगा, यहाँ बहुत लोग
इंग्लिश में बात कर रहे हो, मेरा जो इंग्लिश है वो हिंग्लिश है, तो उतनी फ्लुएंसी नहीं होती है। तो ये सब भी सोचकर मैं शर्म से 2-3 महीने अपने आप को शांत रखा। लेकिन धीरे धीरे मैं समझा कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को दिखाकर पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इंडिविजुअल एंटाइटी हूँ, मेरा पढ़ाई मेरा काम है, और मैं वो सब चीज़ जानकर जाऊँगा जो इंजीनियरिंग में जानने के लिए लोग आते हैं, और एक वैल्यू मैं दूंगा उस 4 साल को जो मेरे जीवन में लौट कर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ अपने अंदर लाइए, 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 प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शर्म को निकाल कर फेंकिए, झिझक को निकाल कर फेंकिए, इग्नोरेंस को निकाल कर फेंकिए। पूछिए, 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 50 बार पूछिए। आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार पूछिए। आप देखेंगे मैं आपसे कैसे बात करूंगा, जब आने वाले एपिसोड में जब बात करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं आप कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा सा कहीं इग्नोरेंस जो है उसको मैं निकाल कर फेंकूंगा, और आपको ग्रूम करूंगा। ग्रूमिंग आपकी बहुत ज़रूरी होती है। एक इंथुजियास्टिक होना, एक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना, टाइम का यूज़ करना। एक इंजीनियर समझिए कम से कम 50,000 लोगों की लाइफ को अच्छा कर जाता है। तो आप ये सोच के पढ़िए, आप अपने कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप समाज, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो हम लोग सोशल ऑब्लिगेशंस को ज़्यादा हम लोग करते हैं, और अगर वो करते हैं तो हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ती है इसकी, और उसको ईमानदारी से करने की कोशिश भी करते हैं। गलतियां होती हैं, गलतियां ठीक की जा सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करना हमेशा एक मोटो बनाइए अपना। पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए, पूछिए तो ईमानदारी से पूछिए। एग्ज़ाम्स के बारे में बाद में सोचिए, नोएबिलिटी के बारे में सोचिए कि अपने इग्नोरेंस को नोएबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में सोचिए। कोई किसी आपको जो सूट करता हो, आपको जो लगता हो कि आपके नोएबिलिटी को बढ़ाएगा, उस चीज़ को आप ज़्यादा पढ़िए। और बाकी मैं आपको 101 एपिसोड में आपके साथ रहूँगा, तो आप ये मत रखिएगा कि मैं आपको एक कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाऊँगा पहले, उसके बाद इंजीनियर बनाऊँगा। इंजीनियर तो आप कॉलेज में बनेंगे, आपके अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, वो भी पढ़ाई आपको बहुत बहुत अटेंटिव होके करना है, बहुत अटेंटिव होके, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में हैं जो आपको लाइफ टाइम आपको करना है। तो लाइफ टाइम करने के लिए आपको उन सब्जेक्ट के बारे में बार बार अनेक बार बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आएंगे। मैं आपको बताऊंगा वो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको आएंगे, आपका मन करेगा भागें इस सब्जेक्ट से, यार कैसे भी 40 नंबर आते हैं, निकल जाते हैं। ये मत रखिएगा। वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दिखने में टफ होता है, बनाने में भी टफ होता है, समझने में भी टफ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 99 मार्क्स देता है, 100 मार्क्स भी देता है बहुत लड़कों। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको। एंड ऑफ दी 101 जो एपिसोड होगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे, अपने इग्नोरेंस को निकाल चुके होंगे, और किसी चीज़ का परहेज़ नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप इंटरेक्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए और पढ़िए, लेकिन पढ़ने के लिए आप गए हैं वहाँ पे।
पढ़ाई कीजिए, लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। तो ये सब ध्यान रखिए। और बाकी आपके प्रोफेसर्स हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी बाकी मेरे भी एपिसोड से आपको बहुत तरह का फ़ायदा होगा और बहुत नए चीज़ को आप जानेंगे इस एपिसोड में। और मेरी कोशिश थी बहुत दिनों से कि ऐसा एक एपिसोड करूं जिसमें आपकी समझ बढ़े, इंजीनियरिंग को आप कोरिलेट कर पाएँ प्रैक्टिसेस से जो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो वो कोशिश है मेरी। और क्योंकि जब आप कैंपस से बाहर निकलें तो जीरो पे नहीं रहें, आपका स्कोर 1/10 में कम से कम 5 या 6 रहे, ये मेरा प्रयास है। जीरो पे जाएंगे तो आपको 1 पे पहुंचने में 1.5 साल, 1 से 1.5 साल लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, बताने वाले बहुत कम रहते हैं। सीखना भी बहुत टीडियस काम हो जाता है उस साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। और मैं कोशिश करूँगा बहुत ईमानदारी से कि आपको 1/10 में कम से कम 5 या 6 नंबर आपको मिले जब आप निकल के कैंपस प्लेसमेंट के लिए बाहर कहीं जाते हो या कहीं नौकरी करने के लिए जाते हो। तो इसके साथ हमने आज बहुत लंबा एपिसोड किया है। ये ध्यान में रखते हुए कि बीच का गैप कुछ लंबा हो गया था, तो मैंने 2 और 3 एपिसोड नंबर 2 और 3 एक ही साथ कर दिया है। और मैं एक और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का नोएबिलिटी को बढ़ाना हो, इग्नोरेंस को हटाना हो, आप मुझसे सवाल कीजिए, आप मुझसे पूछिए। मैं बहुत अच्छा समझता हूँ ऐसे लड़कों को जो कुछ भी पूछते हैं। ये नहीं है कि आप क्या नहीं पूछते हैं या आपको वो पूछना है जो मुझे लगे कि भाई हाँ ये लड़का पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं, आपको नहीं आता है, आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, आप बार बार कन्फ्यूज हो रहे हैं उस चीज़ को, वैसे चीज़ों को पूछिए मुझसे। आप कभी भी सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है या कोई भी इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रीम एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको ये नहीं अप्रूव कहीं करना है कि आपकी नोएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कभी ये ऐसा सवाल मत पूछिए जो ये दिखाता हो आपके प्रोफेसरों को या आप किसी और से जब आप पूछते हैं कि आप का मेंटल स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा है। नहीं, आपको जो नहीं आता है उसमें ज्ञान बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए। जो नहीं आता है उसमें ज्ञान बढ़ाएंगे तो टाइम का आप रिस्पेक्ट करेंगे। और एक बार अगर आप टाइम का रिस्पेक्ट करेंगे तो टाइम भी आपका रिस्पेक्ट करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ये मैंने देखा है और ये प्रैक्टिकल मैंने प्रूव होते हुए देखा है। इसलिए रिस्पेक्ट द टाइम विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट यू। और आप एक अच्छे इंजीनियर बन के निकले, मेरा शुभकामना है आपके साथ। मिलेंगे फिर चौथे एपिसोड में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने बताया है उसको अपने अंदर एसिमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बेसिक लेसन सभी है। जब हम आएंगे सब्जेक्ट पे और प्रैक्टिकल कैसे होता है उस पर, जो प्रैक्टिकल आपको हैंड्स ऑन साइट पे काम होते हुए दिखाएंगे, तो वो बहुत डिफरेंट होगा। तो मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए, टाइम को वर्थ करिए, अपने जिस एस्पिरेशंस के साथ आप आए हैं वो पूरा कीजिए। एंड विद दैट गुड बाय। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
Thank you very much.